Hey guys, welcome back to Elite Trader. So guys, today in this video, I am going to talking about trading psychology, one of the most overrated concepts in trading. So guys, please listen to this carefully. If you want to become a consistently successful trader in the financial markets, please listen this. See guys, to become a successful trader, to become a trader, you want to be, you need three things. Note it down, please. Note it down. You need three things. Okay. Always have a copy and pen with you. Okay. So note it down. You need three things. The first one is a profitable system, a winning system, a guaranteed system, a back tested system. Okay. In simple languages, a back tested, guaranteed winning system. Okay, which is mainly made up of technicals or fundamental, whatever the hell you are using. Okay, चाहे वो प्राइस एक्शन इंडिकेटर कुछ भी हो. Okay, so the first one is a winning system. The second one is a brilliant trading psychology. Okay, a brilliant trading psychology. And the third one is some of restrictions you need. Some restrictions to become a consistently successful trader. You need some restrictions, which I am going to talking. I will be I will make a video probably in the next week or something. Okay, sorry. Okay, so today I'm going to talking about the second concept is called the trading psychology. So guys, a lot of people make trading psychology a very huge deal. See, I am not talking. I am not talking about that. Oh no, it's not that important or that like no. I am just talking about, you know, you can never become a successful trader with a great trading psychology if you don't have a winning system. Always remember, you will you will never have a you will never become a successful trader with a brilliant trading psychology if you don't have a winning system, my friend. If you just trade simple trend line, if you just trade simple support and resistance, and with a brilliant trading psychology, it is very difficult for you to become a consistently successful trader, my friend. Please remember this. People will tell you, लोग कहेंगे कि भाई तो अगर तुम्हारे पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छा है तुम ट्रेंड लाइन में प्रॉफिटेबल हो सकते हो. नो, यू कैन, बट व्हाई नॉट यू. मतलब तुम क्यों ऑड्स को अपने अगेंस्ट करना चाहते हो. ओके, why are you want to play against the odds? Why are you want to play in a losing system with a great trading psychology? It's not good, my friend. Okay, so always remember guys, in trading psychology, mostly men people face two or three types of trading psychology. The one is fear, the second one is greed, the third one is I think FOMO. I think that then उसके बाद अर्ली एग्जिट अर्ली एंट्री, इन टाइप का कुछ होता है. ओके, सो गाइस जो फियर होता है, द फियर वाला जो आपको जो डर लगता है ट्रेड लेने में, आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन. Suppose you are a job person. Suppose you are a college student. Okay, you are trading. You are a college student and आपको डर लग रहा है. ओके, आपको डर लग रहा है एक ट्रेड लेने से. आस्क योरसेल्फ, इज दैट फियर इज बिगर देन माई सक्सेस? Is that fear is bigger than my life? Because if I don't take trade, if I don't take trades just by fearing to my outcome, if I don't take trades just by fearing to my results or a fear of being loose, I will never become a successful trader, my friend. I will never become a successful trader. I will always be a average person, my friend. Okay, ask yourself one question कि भाई डर लग रहा है ना. आस्क योरसेल्फ कि भाई मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मुझे ट्रेड लेने में डर लगता है. मेरे पास तो बट ट्रेड लेने के अलावा
मेरे पास रास्ता ही क्या है अब। अगर मैं ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वैसे भी नहीं बन सकता ना, मैं हमेशा एवरेज ही रहूँगा। तो इससे अच्छा भाई ले ही लेता हूँ, इससे अच्छा ले ही लेता हूँ, इससे अच्छा थोड़ा ट्राई तो कर लेता हूँ। ओके, एंड द सेकंड वन द गाइस फोमो। सी गाइस, जब भी मार्केट बड़ा मूव देता है हमें फोमो आ जाता है, इट्स नॉर्मल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट्स आर डायनामिक, मार्केट्स आर रिपीटेटिव, एंड मार्केट्स will outlive you a lot. All of you will outlive all of you. भाई हमारे आने से पहले भी मार्केट्स थे और हमारे जाने के बाद भी मार्केट्स यहीं पर रहेंगे। मार्केट्स कहीं नहीं जा रहे, जाएंगे तो हम जाएंगे। So why do you want to catch every single move if you know markets is going to live forever here? मार्केट अगर हमेशा यहाँ पर रहने वाला है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? एंड मार्केट्स ऑल्सो रिपीटेटिव। अगर आज एक 100 पिप का मूव आया है 2 मिनट में, तो वो कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है, क्या हो जाएगा? तुमने 5 अगर वैसे मूव भी मिस कर दी ना भाई, छठा मूव आ जाएगा। डोंट वरी माई फ्रेंड, व्हाट द हेल यू आर लूजिंग। देन उसके बाद फियर होता है, ग्रीड होता है। ग्रीड इट्स ए अनदर ह्यूज डील। तो ग्रीड को भी कैसे डील करना है उसको भी मैं बताता हूँ। तो ग्रीड जो होता है गाइज, वो बेसिकली होता है कि भाई हमें कुछ ज़्यादा चाहिए। नो, व्हेन यू केम टू द मार्केट ऑलवेज ट्राई टू इन ए लर्निंग मोड, नॉट ए अर्निंग मोड। कभी भी जब भी मार्केट में आप ट्रेड करते हो, अब हमेशा एक लर्निंग माइंडसेट लेके आओ, कभी अर्निंग माइंडसेट लेके आओ मत लेके आना। बिकॉज आप अर्निंग माइंडसेट लेके आओगे, आपको हमेशा ज़्यादा अर्निंग करने की ज़रूरत महसूस होगी और जाएगी, आपको ग्रीड आ जाएगा, क्योंकि आपने अपने माइंड में भी अर्निंग माइंडसेट लेके यहाँ पर आए हो। ओके, तो जब भी यहाँ पर आते हो, whenever you come to the market for trading, always come with a earning, not earning mindset but learning mindset. ओके, कुछ सीखने के लिए आओ, कुछ सीखने के लिए आओ। आपके लिए प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि वो पैसा जो बना रहे हो। आपके लिए प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपके लिए आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। Because the only time when you focus on your process, not money, is the time when you completely discard your greed. Okay, so it's the best advice I can ever tell you about greed. So then early entry, early exit, तो ये सब भी गाइस एक फियर का हिस्सा है। अर्ली एंट्री, अर्ली एग्जिट जब भी करना है, आपको हमेशा पूछ लेना कि भाई क्या इस सब चीज़ करने से मैं सक्सेसफुल बन जाऊँगा। इफ द आंसर इज यस, करो, बहुत करो, और ज़्यादा करो। इफ द आंसर इज नो, जस्ट स्टॉप डूइंग इट, जस्ट स्टॉप डूइंग। आई नो इट साउंड्स वेरी सिंपल, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। बट आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर आपको अर्ली एग्जिट का और जाता है, आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है जस्ट टू होल्ड दैट ट्रेड को होल्ड करने के अलावा आपको भी तो कोई ऑप्शन नहीं। लोग आएंगे, आपको मैजिक पिल जैसा एडवाइस दे देंगे कि भाई ये कर लो, वो कर लो। एट द एंड ऑफ द डे आपको ही होल्ड करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपके लिए। तो देन व्हाई डोंट यू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। कोई मैजिक पिल खाने से, तुम खा लेने से हो सकता है आप एक हफ्ते तक अच्छे से ट्रेड करो, एक महीने तक अच्छे से ट्रेड करो, बट फिर से वही प्रॉब्लम। तो इससे अच्छा कि अपने ऊपर काम करो, जस्ट फिक्स इट फॉर एवर। अर्ली एंट्री का, अर्ली एग्जिट का फियर आ रहा है, जस्ट होल्ड दैट ट्रेड और क्लोज द पीसी एंड गो समवेयर, व्हाटएवर। सो गाइस, जो अर्ली एग्जिट के बारे में बताया, तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया। जब भी मैंने बोला कि भाई ट्रेड पीसी या फ़ोन बंद करके कहीं बाहर चले जाओ, प्लीज़ रिमेंबर कि भाई जब भी आप जा रहे हो, एटलीस्ट अपने ट्रेड को रिस्क फ्री बना दो। चाहे वो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, चाहे कुछ पार्शियल से बुक कर लिया, व्हाटएवर, बट अपने ट्रेड को रिस्क फ्री बना दो। कभी भी ओपनली स्टॉप लॉस लगा के मत चले जाना, क्योंकि मैंने ये बहुत बार फेस किया है कि भाई जब ये ट्रेड सपोज लो 1:3 का था, जब ट्रेड मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का था, जब भी ट्रेड 1:2 चला जाता था, मैं फ़ोन बंद करके चला जाता था। कई बार जब मैं आता था, कई बार ट्रेड वहाँ से रिटर्न जाके मेरा स्टॉप लॉस खा लिया। सो ऑलवेज रिमेंबर कि भाई जब भी आप
किसी या फ़ोन छोड़ के जा रहे हो, कोई भी काम में जा रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर कि भाई आप पहले स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन में ट्रेल करो या फिर कुछ पार्सल बुक कर दो, व्हाटएवर आपको जो भी अच्छा लगता है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि भाई स्टॉप लॉस ब्रेक इवन में ट्रेल कर देना। ओके, सो दिस इज इट फॉर गाइस, and I will see you in the next one. Thank you so much. Bye bye.